Yeah, so good afternoon, everybody. We want to thank Brother Victor so that we could spend some time with Brother to take the freedom to ask him some questions. चेक। और ये समय जो है वो कुछ प्रश्न हम भाई विक्टर से पूछेंगे। हम आज़ादी के साथ उनको कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। Yeah, so it will be a bit of a formal and informal time. So we can hear from Brother Victor's life. There are a few questions around his personal life, family, raising children. So we will hear from Brother. और ये समय जो रहेगा फॉर्मल इनफॉर्मल, हम प्रश्नों को पूछेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन से, उनके पारिवारिक जीवन से, उनके जीवन की गवाहियों को हम सुनेंगे। Yes, so Brother, we will probably begin with the first question. In the beginning itself, I want to say one thing. So, what we saw in the morning session, not I but Christ. और जैसे हमने सुबह के सत्र में देखा कि मैं नहीं पर परमेश्वर, Not to us, but to Christ. और मेरे लिए नहीं लेकिन यीशु मसीह के लिए। We should always keep these two phrases in our heart. और हमेशा ये दो कथन हमारे हृदय में हमें रखना चाहिए। Not I but God. मैं नहीं पर परमेश्वर। One more thing. दूसरी चीज, Not to us, but to Christ. हमारी नहीं लेकिन यीशु मसीह के लिए। So, let His name be glorified also in this session. और इस सेशन में यीशु मसीह का, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। Okay. Though these answers may not be the full perfect answer. और ये प्रश्न के उत्तर जो मैं दूंगा वो शायद पूरी तरह से सिद्ध उत्तर नहीं होंगे। You might have asked these questions in one spirit. My answers would be in a different spirit. और शायद आपने इन प्रश्नों को एक आत्मा में पूछा होगा और मेरे उत्तर उसके जो होंगे शायद दूसरी आत्मा में हो सकते हैं। So we have to lean upon the Holy Spirit for each and every questions. और हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि हमें हमारे जीवन में हर उस प्रश्न के उत्तर को हमारी अगुवाई करे। Okay, please. So that it falls. Yeah. Okay, so amen to what the brother said. So one of the first questions, brother, we want to hear from you on your childhood as well as your experience before becoming a believer and as a young Christian from a non-Christian background, and how did you take a stand in your family? और आपके जवानी के समय में, आपके बचपन के समय में, मसीह में आने से पहले किस रीति से आपने मसीह के लिए एक स्थान और एक निर्णय और खड़े रहे, आप उस विषय में हमको जानना चाहेंगे। Oh, already they have sent these 20 questions to me. और पहले उन्होंने 20 प्रश्नों को पहले भेजा है मुझे। So as we have to answer it in a briefly. और जैसे हमको बहुत ही संक्षिप्त के अंदर इसका उत्तर देना है। So you have asked me to share my experiences. और जैसे मेरे अनुभव को बांटने के लिए कहा गया है। So just I want to, for the glory of God, I want to tell one or two things. और प्रभु की महिमा के लिए मैं कुछ एक या दो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Because of my Christian faith at the age of 21, I was sent out from my family after getting the release deed from me. At the age of 21, I came out from my family. और 21 वर्ष की आयु में जब मैं था, क्योंकि मैंने मसीह को अपनाया, मेरे विश्वास के कारण मुझे घर से बाहर निकाला गया, जैसे एक करारनामा मेरे साथ किया गया 21 साल की उम्र के अंदर। A few times, one or two times, my father has beaten me very severely because of my faith. और मेरे विश्वास के कारण कुछ समय, बहुत ऐसे समय थे जहां मेरे विश्वास के कारण मेरे पिता ने मुझे बहुत ही बुरी रीति से पीटा था। Because of not partaking in their religious worships or abstaining from food which are worshipped before God. और क्योंकि वो मूर्ति पूजा जो मैं नहीं करता था या जो प्रसाद या जो चढ़ाते थे उससे मैं नहीं खाता था, उस कारण की वजह से। So such situations he has one or two times he has beaten me also. और एक या दो बार ऐसा समय आया जहां मुझे मारा और पीटा गया था। One particular point of time they sent me out. और एक समय ऐसा भी था कि जहां उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। Only after 25 years only God made the story in a very beautiful way. और 25 साल की जब मैं आयु में आया तब परमेश्वर ने उस कहानी को बहुत ही सुंदर रीति से बनाया। Both my parents in their old age,
और जब मेरे माता पिता जो बहुत ही वृद्ध आयु में थे, They were with us. वो हमारे साथ थे। God helped us, to me and my wife, God helped us to take care of them unto their last days. और मेरी पत्नी की प्रभु ने सहायता की कि उन मेरे माता पिता के अंतिम दिनों के अंदर हम उनकी देखभाल कर सकें So, glory to His name alone. और प्रभु की केवल महिमा हो। So, simply saying, parents are Jesus. और यहाँ पे साधारण रीति से अगर मैं कहूँ तो माता पिता या यीशु मसीह, In order to gain Jesus Christ, even we have to hate our physical that relationship. और यहाँ तक कि परमेश्वर यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए हमारे शारीरिक माता पिता है, उन्हें भी हमें इनकार करने के लिए तैयार होना है। We should allow the sword to fall upon that physical relationship. और हमारा जो That our शारीरिक parental relationship. माता पिता के साथ जो हमारा शारीरिक संबंध होता है, उसके ऊपर तलवार को आने के लिए हमें अनुमति देना है। So, that's the proof for our discipleship. और ये एक सबूत बन जाता है हमारे शिष्यत्व का। One of the conditions for the discipleship, Luke 14:26, we read that we should hate our parents, brothers, sisters, wife, children. और लूका 14:26 के अंदर एक शर्त जो यीशु के शिष्य बनने की है कि हमारे माता पिता जो हमारे और भी भाई बहन है, उनको हमें इनकार करने के लिए, उनको घृणा करने के लिए हमें तैयार रहना है। But God made the end of the story very beautiful. लेकिन Both my parents were with me at the last days. और परमेश्वर ने उस कहानी का अंत बड़ी सुंदर से किया। मेरे माता पिता उनके जीवन के अंतिम समय के अंदर मेरे साथ रहे थे। Okay, please. Thank you, brother. Brother, there are two questions on workplace. So, question 2 and 3. I will combine them for time. In a non-Christian workplace, how do you deal with pressures to compromise your faith? And in your workplace, how do you handle pressures of deadlines, problems with co-workers, and difficult bosses, etc.? और प्रश्न ये है, क्या ये कार्यस्थल के संबंध में है कि एक गैर ईसाई कार्यस्थल जहां होता है, जब आपके विश्वास पर समझौता करने का दबाव आता है तो आपने उसे कैसे संभाला है? अपने कार्यस्थल पर जब समय सीमा, सहकर्मियों के साथ समस्या आई या कठिनाई या कठिन बॉस जैसे आपने परिस्थिति देखी होगी, तो उस परिस्थितियों में आपने उन्हें कैसे संभाला है? I was working in a Catholic institution for nearly 31 years. और 31 साल तक मैं कैथलिक संस्था है उसमें काम करता था। I was the only Protestant Christian in the school. और पूरे स्कूल के अंदर मैं ही एक प्रोटेस्टेंट, एक विश्वासी था। Because of that, so what's my spiritual battle there was Bible faith or Catholic faith. That was my battle. और वहां पर होने के कारण मेरा हमेशा एक युद्ध रहता था कि कैथलिक फेथ और विश्वास का अनुसरण करना या बाइबल के आधारित जो विश्वास है उसका अनुसरण करना है। In the beginning, that for 1 or 2 years, I was a पक्का compromiser. और आदि के जो साल, जो 1 या 2 साल थे, मैं पूरी तरह से एक समझौता करने वाला व्यक्ति था। Yes, there was a fear whether I lost my job. और मेरे अंदर एक भय था कि शायद मैं अपनी नौकरी को खो बैठूंगा। 1988, I attended a conference at Bangalore. और बैंगलोर में 1988 के अंदर मैंने कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया। In that conference, I never forget that one session. और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सेशन को मैं कभी नहीं भूल पाता। Brother Zach spoke about don't be a compromiser in the compromising world. That was the message. और संदेश भाई जैक ने ये दिया कि समझौता करने वाले संसार के अंदर आप समझौता न करें। Such a deliberate delivery, such a powerful message he delivered. और इतना सामर्थ्य वो संदेश था, एक छुटकारा देने वाला वो संदेश था मेरे लिए। Where are Daniels? Where are Elijahs? Where are Noahs? और आज के दानियल कहाँ है? आज के जो नोहा है वो कहाँ पर है? That message strengthened my backbone. और उस संदेश ने मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत कर दिया। So God gave me the courage or boldness to stand for Jesus in my workplace. और मेरे कार्यस्थल पर परमेश्वर ने मुझे वो हियाव दिया, वो निडरता दी कि मैं परमेश्वर के लिए वहां पे निडरता से हियाव के साथ खड़ा रह सकूं। 1986 I joined my school. और 1986 के अंदर मैंने उस स्कूल को जोड़ा था। 1988 I attended conference. और 1988 के अंदर मैंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। After that conference I stood for my faith. और उस कॉन्फ्रेंस के बाद में मेरे विश्वास के कारण वहां पर खड़ा रहा। Yes, the problem started. और वहां पर फिर समस्या आरंभ हो गई। First they, because of my faith,
first they cut my regular increment. और वहां पर बिकॉज मेरे मेरे विश्वास के कारण जो मेरा रेगुलर तनख्वाह के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए उसको उन्होंने पूरी तरह से कट कर दिया। So that institution was the government aided school. और ये जो संस्था जो थी वो गवर्नमेंट एडेड मतलब गवर्नमेंट से उनको एक सरकार से मदद मिलने वाली वो स्कूल थी। I didn't bother about my increment. और मुझे इंक्रीमेंट की कोई परवाह नहीं थी। Then again they started giving me trouble by giving 6 months notice time to quit my job or resign my job. और उसके बाद और मुझे परेशान करने लगे 6 महीने का नोटिस पीरियड देख के कि आप इस नौकरी को छोड़कर चले जाइए। Me and my wife, we both discussed and prayed together. और मैंने मेरी पत्नी ने इस बार की चर्चा की और हमने प्रार्थना की साथ में। Faith or job? विश्वास या फिर नौकरी। In my first battle was with my parents. और पहला मेरा संघर्ष था माता पिता के साथ Now the second battle was with my job. और अब मेरा संघर्ष है मेरी नौकरी के साथ। My wife at the time, she encouraged me very much. और मेरी पत्नी ने उस समय मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। Even we lose our job, we should not compromise with our faith. यहाँ तक कि शायद हमें हमारी नौकरी भी छोड़ना पड़े लेकिन हम हमारे विश्वास के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। So even we can take tuitions and earn money. और घर पर हम ट्यूशन लेंगे और वहां से हम पैसे कमाएंगे। Whether we lose our job or not, that's not matter. और हम हमारी नौकरी रहे या ना रहे हमें छोड़नी पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। At any cost, we should not lose our faith. लेकिन किसी भी कीमत पर हमारे विश्वास को हम समझौता नहीं करेंगे। But miraculously, what God did in my job, और बहुत ही चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने मेरी नौकरी के स्थल पर ये काम किया। then that the difficult boss was transferred. और वो जो मेरा कठिन जो बॉस था उसका ट्रांसफर हो जाता है। Then my probation period was over. और मेरा प्रोबेशन पीरियड वहां पर खत्म हो जाता है। In that same school, I had been working for 31 years, and then I gave VR from that school. I came out. और वहां पर 31 साल तक मैं स्कूल में ही काम करता और मैं अपने स्वेच्छा से उस स्कूल से बाहर निकला। फिर So His faithfulness is great. His faithfulness is great. परमेश्वर की विश्वास योग्यता बहुत ही महान होती है। So our part is very little. हमारा भाग बहुत ही कम होता है His faithfulness is great. लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता बहुत ही महान होती है। Yes, in my 31 years of service, I have seen 9 principals, 11 principals and 9 correspondents. और यहाँ पर मैंने 31 साल के मेरे जो मैं काम मैं कर रहा था 11 प्रिंसिपल मैंने देखे और 9 करस्पॉन्डेंट जो होते वो देखे मेरे साथ काम करने के लिए। Some bosses are difficult bosses. और कुछ बॉस बहुत ही कठिन कठोर होते थे। Those principal and correspondent bosses have enriched me in a spiritual way. और उन कठिन बॉस जो थे जो सहकर्मी जो उनके साथ काम करना पड़ता था उनके कारण मैं बहुत ही भरपूरी से जैसे भर गया। They have made me rich in grace. और मुझे अनुग्रह में उन्होंने बहुत ही धनवान बना दिया। So some bosses had the spirit of power conscious and authority conscious. Bosses were there. कुछ ऐसे बॉसेस होते थे जो बहुत ही अपने सामर्थ्य को दिखाना अपने अधिकार को दिखाने वाले ऐसे बॉस होते थे। Though they were young in my younger than me. और कई बार ये बॉस मुझसे उम्र में भी कम होते थे। So just they were fond of humiliating me, that spirit. और उनके अंदर ऐसी आत्मा होती थी कि मुझे पूरी तरह से अपमानित या निंदित करना है। Such circumstances, God has given me grace. और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। So I praise the Lord. When I look back, I praise God for all those difficult bosses. और जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो उन सारे कठिन बॉसेस के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। So Bible we read, no, one company is there, Laban and Co. Laban and Co. अच्छा, कंपनी के बारे में हम देखते हैं कि लाबान एंड कंपनी ऐसा। So there is unreasonable masters. और वहां पर उनके ऊपर जो होते बहुत ही जिनका कोई किसी भी कारण के बिना वो परेशान करने वाले ऐसे बॉस होते हैं। What Peter will say in his epistle. और वहां पे पतरस अपने पत्री में क्या कहता है? You servants obey your masters with a fearful spirit. और यहाँ पर पतरस कहता है कि तुम हे दासों अपने स्वामी की बहुत ही एक भय के साथ जो आत्मा उसके साथ तुम उनकी सेवा करो। When Jacob was under Laban, जब याकूब जो था वो लाबान के नीचे काम करता था 20 years he went through a tough time. 20 साल तक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरा। God broke him in through such circumstances. और परमेश्वर ने उसे ऐसी परिस्थितियों के द्वारा बहुत ही तोड़ा। We should not miss out such situations. हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को हमें चूकना नहीं है। Okay, please. Thank you, brother. I hope we will also learn to be rich in grace as we go through various challenges at our workplace. और हमारे काम के स्थल पर जब हम भी ऐसी हालातों से जाते हैं तो हम भी उस अनुग्रह के अंदर धनी होंगे। Yes, we can
God can give us more grace. और परमेश्वर हमको और अधिक अनुग्रह दे सकता है। God will give more grace for humiliation. जो अपमान से हम गुजरते उसके लिए और अधिक अनुग्रह परमेश्वर हमको देगा। One time, one boss in front of all my staff, he humiliated me. एक समय पर एक बॉस ने मेरे सारे स्टाफ कर्मचारी जो सहकर्मी थे उनके सामने मुझे पूरी तरह से अपमानित निंदित किया। Then the Holy Spirit whispered in my ears, और पवित्र आत्मा ने मेरे कान के अंदर जैसे फुसफुसाया, I have credited 5,000 rupees grace in your account. और जैसे पवित्र आत्मा ने कहा कि 5,000 रुपए का अनुग्रह मैंने तेरे अकाउंट में डाल दिया है। What account? Grace account. वो अकाउंट का नाम क्या? अनुग्रह का अकाउंट। So in front of all staff, you have been humiliated, no? और क्योंकि तुमने सारे स्टाफ के सामने तुमको अपमानित किया गया ना, You go and see your check your account. और जाकर अपना अनुग्रह का अकाउंट जो है उसको चेक करो। I have put 5,000 rupees grace in their spiritual realm, I tell you. और आत्मिक रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आपके अकाउंट के अंदर 5,000 रुपए का अनुग्रह आपको दिया गया है, Don't miss it. और आप उसको। Okay, thank you. Thank you, brother. So, there is another question on balancing your life. So, brother, you have had a lot of responsibility. So, as a responsible brother, how do you balance your work life, spending time with family, and also working in the church? Any practical suggestions on how we can practically balance these three aspects of one's life? और प्रश्न यह है कि एक जिम्मेदार भाई के रूप में आपने अपने काम की जगह, परिवार के स्थान पर, कलीसिया के सेवकाई के बीच कैसे संतुलन बना के रखा है? क्या आप कुछ व्यवहारिक सुझाव हमें दे सकते हैं जिससे हम भी इन तीनों चीजों के बीच एक संतुलन बना सकते हैं? Truly God's grace only. केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही था। So there were many situations and occasions where I had been unable to spend time with my family. ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां, हालात थे मेरे जीवन के अंदर जहां मैं अपने परिवार के साथ समय को नहीं बिता पाया हूं। Yes, that was true. और ये सच बात है। But graciously, my wife and my children, they tolerated me. लेकिन बहुत ही अनुग्रह मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने उसको सहा। And they all knew that I was working for the Lord. और क्योंकि वे जानते थे मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा So I हूं, am thankful for my wife and my children. और मेरी पत्नी और बच्चों के लिए मैं धन्यवादी हूं। They have also sacrificed. और उन्होंने भी उस बलिदान को दिया है। But in the midst of all ministries or job, every Monday evening, I won't go anywhere. और काम की जगह पे, सेवकाई के बीच में मैं हर सोमवार शाम का समय था जब मैं कहीं पर भी नहीं जाता था। All this I remember even now. Even my children also remember. Monday is for family time. और हर सोमवार शाम का सोमवार का समय जो है परिवार का समय, मैं कहीं नहीं जाता था। So that's our family time, family spending time with the children. और वो परिवार का एक समय होता था, बच्चों के साथ समय बिताने का समय होता था। So as I'm the teacher, और जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, I would take mathematics for my children. जैसे मैं गणित को मेरे बच्चों को सिखाता था, My wife, she would take chemistry for them. I would take mathematics and physics for them. और मेरी पत्नी जो केमिस्ट्री में, मैं गणित को उनको सिखाता था बच्चों को। So we would convert those times as a fellowship time. और वो समय जो होता था उस समय को हम संगति के समय में पूरी तरह से बदल देते थे। So God's grace only. ये प्रभु का केवल अनुग्रह है। So what I already told, my wife and my children, they tolerated me. और जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे सहा है। Okay. Thank you, brother. Brother, this next question is around relation between husband and wife. Yeah. So there are a lot of young families, young couples in the church. So the question is, how do you build fellowship with your wife? And how can we practically have good fellowship with our wife? और प्रश्न ये है कि हम हमारे पत्नी के साथ संगति या फेलोशिप को कैसे विकसित कर सकते हैं? हम अपनी पत्नियों के साथ अच्छी आत्मिक संगति कैसे बना सकते हैं? It's a very good question. ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, It's very important. बहुत महत्वपूर्ण है। Unless we build fellowship with our wife or the children in the family, we cannot build fellowship with the brethren. और यदि घर पर हम अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों और पत्नी के साथ, अपने साथी के साथ उस संगति को विकसित नहीं करते तो हम परिवार कलीसिया के अंदर नहीं कर पाएंगे। Yeah, this is what we emphasize all these years in our CFC churches. और इन सालों के अंदर CFC कलीसिया के अंदर इसी पर हम जोर देते आए हैं।
But in my, so balancing all three, my personal, my job, my family and my ministry in balancing, और जब हमें संतुलन करना होता है व्यक्तिगत जीवन, काम की जगह और सेवकाई परिवार, in our home, we have just, I want to introduce few things to you. और हमारे घर के अंदर में कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने परिचय उसका देना चाहता हूँ। We have fellowship tea, और हमारे वहाँ फेलोशिप संगति चाय बोलते हैं, fellowship meals, और संगति भोजन, fellowship walk, फेलोशिप संगति का साथ में चलना, चलने जाना, fellowship marketing. संगति का मार्केट में जाना। Do you know what does it mean? Fellowship marketing. और फेलोशिप मतलब संगति मार्केटिंग, इसका मतलब आप जानते क्या है? See, quality of time is very important than the quantity of time. और कितना समय आप बिताते उससे ज्यादा गुणवत्ता, जो आप किस प्रकार की गुणवत्ता का समय बिताते वो जरूरी है। Sometimes my wife, she would ask me to go to market to buy some vegetables or fish market or some groceries in the shopping mall. और कई बार मेरी पत्नी मुझे कहेगी मार्केट से आप जो कुछ सब्जी लेकर आए या मछली लेकर आइए या कुछ मॉल से कुछ लेकर आइए। What I do, मैं क्या करता हूँ, I would ask my wife also to come with me for fellowship. और मैं मेरी पत्नी को भी कहता हूँ कि मेरे साथ तुम्हें चलना है संगति के लिए, चलने के लिए। See, you please go. I have some other important work to do in the kitchen. You please go and buy. और वो She would कहते say. वो मेरी पत्नी ऐसे कहेगी कि हाँ तुम किचन में बहुत जरूरी काम है, आप अकेले जाकर सामान लेकर आओ। Then again I will plead her. Say, just for fellowship sake, we shall go. और मैं उनको विनती करूंगा कि संगति के लिए थोड़ा सा मेरे साथ आ जाओ। So most of the times she would change her dress and within a few minutes she'll come with me. और अक्सर ऐसा होता तो अपने कपड़े बदल के फिर तुरंत मेरे साथ वो आ जाते हैं। That's not the big city like Mumbai. और ये मुंबई जैसा कोई बड़ा शहर नहीं है, Just like a village. एक गांव है वो। So just it will take some 10 minutes or 15 minutes. That's all. और 10 या 15 मिनट ही लगेगा उस काम के लिए। We will both go to fish market. हम लोग उस फिश मार्केट में एक साथ में जाएंगे, Or we will both go together. We will go to vegetables market or shopping malls. और शॉपिंग करने के या फिर वो सब्जी खरीदने के लिए हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। This has been going on in our family for nearly 40 years. अब 40 साल से हमारे घर में ये चलने की संगति, मार्केट की संगति चल रही है। This is fellowship marketing. ये है संगति जो मार्केट की संगति है। I encourage you also. मैं आपको भी प्रोत्साहित करूंगा इसको करने के In लिए। order to build fellowship. और ये संगति को निर्माण करने के लिए है, Because I don't have time with her to spend. क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता है उसके साथ समय बिताने के लिए। I want to make use of those opportunities. और उन सारे अवसरों का मैं पूरा उपयोग करना चाहता हूँ। Okay, shall we go? क्या Shall we go? हम चले? And sometimes I would ask my wife to prepare a tea. कई बार मेरी पत्नी से कहूंगा एक चाय बना दो। See, morning itself you finished your tea, no? और सुबह में तो अपनी चाय तुमने पी थी। Then I will tell her, fellowship tea. और फिर मैं उनको कहूंगा संगति की चाय है ये। Okay, immediately she would go. She's excellent at preparing tea. और वो बहुत अच्छा चाय बनाती है और मैं तुरंत वो जाकर चाय बना देती है। Then we will have a fellowship tea. और फिर हमारे साथ वो संगति की चाय होती So है। something like that we have founded these things: fellowship tea, fellowship walk, fellowship marketing. और ये हमने fellowship सारे meals. देखा कि हमें संगति की चाय, संगति का भोजन, संगति का मार्केट में जाना। So yes, we are so much engaged with so many things, और 100 things. और ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करते So हैं। in the midst of all, we have to find out time. और इन सारी बातों के बीच में हमें समय निकालने का प्रयास करना है। Okay. Thank you, brother. I think that was very encouraging. I hope it will encourage our young families here as well to be very practical, in the simple things of life. और बहुत ही प्रोत्साहन करने वाला था। यहाँ पर जो नवविवाहित या दंपति जो यहाँ पर है उनके लिए बहुत ही एक व्यवहारिक की एक हमारे लिए एक मदद है। Even before we come here to Mumbai, we went for fellowship marketing. और यहाँ पर मुंबई में आने से पहले भी हम लोग वो फेलोशिप जो मार्केटिंग का है, मार्केट जाने का, उसके हम लोग इंतजार करते हैं। See, we don't have toothpaste. Please go and bring some toothpaste. She asked me. और उन्होंने कहा कि टूथपेस्ट नहीं है, थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर आओ। Any other things in addition to that toothpaste? और उसके साथ साथ और भी कुछ लाना है क्या? She said no. क्योंकि नहीं। So shall we go? तो मैं बोला साथ में चले हम लोग। For this toothpaste, have it to come. वही टूथपेस्ट लाने के लिए भी मुझे साथ में आना पड़ेगा। Fellowship. और संगति है। Don't forget. तो Okay. उसको ना भूले आप।
Okay, thank you, brother. So this is a question around the church. In the church, how do we manage disagreements with brothers regarding practical matters? और ये कलीसिया के संदर्भ में प्रश्न है कि कलीसिया में जब व्यवहारिक बातों को लेकर भाइयों के बीच में कोई मतभेद होते हैं तो उसे मैं कैसे सुलझाना चाहिए। Yes, disagreements may come on the basis of spiritual matters and earthly matters. और हो सकता है कि आत्मिक बातों के संबंध में या भौतिक बातों के संबंध में मतभेद हो सकते हैं। First of all, we should identify these disagreements on the basis of spiritual things or earthly things. सबसे पहले हमें अंतर करना चाहिए कि ये भौतिक चीजों के आधार पर मतभेद है या फिर आत्मिक बातों के आधार पर का मतभेद है। Disagreements with related to spiritual matters is much important than the earthly things. और जो आत्मिक बातों के अंदर मतभेद जो होता है वो भौतिक या शारीरिक बातों का मतभेद उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है। For example, उदाहरण के रूप में for one Sunday service, एक रविवार की सभा में whether we give sambar rice or biryani, और हम सांबार राइस देंगे या फिर बिरयानी देना है there may be some disagreement. और वहां पे मतभेद हो सकते हैं। So this is an earthly matter. और ये तो एक केवल पृथ्वी का एक संसारिक मामला है, We can leave them. We can leave them. उसको छोड़ सकते हैं। Or suppose a brother is hospitalized in the hospital. एक भाई जो है अस्पताल में हॉस्पिटलाइज्ड है, The church decided to help financially. एक कलीसिया वहां पे निर्णय लेती कि हम आर्थिक रूप से इस भाई को सहयोग देंगे Whether this much of amount or less amount, और इतना पैसा देना है या कम पैसा देना है, or whether should help him now or not. और अभी सहायता करना है या नहीं करना So है। these are all the earthly related matters. और ये जो है पार्थिव या इस धरती की बातों के संदर्भ में बातें हैं। We should not hold on to our disagreements. We should let things go. और इन 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 मतभेदों को हमें जकड़े नहीं रहना, इनको छोड़ना है, जाने देना है। We need not give much. We should not fight for this. Don't we give room for any disputes or quarrels. और यहाँ पर इन सारे मतभेदों को हमें झगड़ना नहीं है, विवाद नहीं करना, इन सारी चीजों को पकड़े नहीं रहना है। Sambar rice or biryani, that's not the matter. और सांबार राइस खाओ या फिर बिरयानी रखो, उससे कोई फर्क नहीं But पड़ता in है। the spiritual matter, लेकिन आत्मिक संदर्भ में it's very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। That's disagreements we should always welcome. और वहां पर मतभेद हो, वहां पर हमें उसे आमंत्रित करना है। For example, in giving baptism to a brother, और वहां पर एक भाई जो है उनको बपतिस्मा देने के संदर्भ में one brother says, एक भाई बोलता है, one of the responsible brothers says, yes, we can give. He is ready. We will give baptism. एक भाई कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो बपतिस्मा के लिए वो तैयार है, उनको बपतिस्मा दे सकते हैं। The other brother says, और दूसरा भाई कहता है no, I don't find such a born again experience. We have to wait for some more time. और दूसरा भाई कहता है कि मुझे ये नए जन्म का अनुभव अब तक नहीं दिखता है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। This is the spiritual matter. और ये आत्मिक संदर्भ की बातें हैं। At the time, we have to wait. उस समय पर हमें इंतजार करना है, We have to wait upon the light. हमें वहां Lord, पर हमें परमेश्वर का इंतजार करना है। there is yellow light. और यहाँ पे तो एक ये पीली बत्ती है, No green or nor red. हरी भी नहीं है बत्ती और वहां पे लाल भी बत्ती नहीं है। When we are waiting upon the Lord, जब परमेश्वर पर हम इंतजार करते हैं, God will reveal His perfect will. परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा को प्रकट करेगा। So spiritual matters, we should give more importance. और आत्मिक बातें जो है उसको हमें उन मतभेदों को, उन बातों को ज्यादा महत्व देना है। Thank you, brother. Brother, there are a few questions around children, so I will ask them one after the other. The first one is how to have a good relationship with children when they are in their teenage and youth. Also, how is your relation with your married children? How to spiritually help our married children when they have their own separate families? और प्रश्न यहाँ पर है कि There are three questions in it. उसमें तीन प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर है। जब हमारे बच्चे, पहला प्रश्न, हमारे बच्चे किशोरावस्था या युवा अवस्था में होते हैं तो उनसे अच्छा संबंध हम कैसे बनाए रख सकते हैं। दूसरा, आपका अपने विवाहित बच्चों के साथ संबंध कैसा है। तीसरा, जब आपका परिवार है तो हम उन्हें आत्मिक रूप से कैसे सहायता कर सकते हैं। I am generally strict with my children, और मैं अपने साधारण रूप से अपने बच्चों के साथ बहुत ही सख्त रहता हूँ, but my children would get along with my wife very well. लेकिन मेरे बच्चे जो है मेरी पत्नी के साथ बहुत आसानी से उसके साथ मिलजुल जाते हैं। Even all they would talk freely, openly to her. और मेरी पत्नी के साथ मेरे बच्चे बहुत ही खुली रीति से ओपनली बात करते हैं। Generally, they won't hide anything. वो आम तौर पर कुछ छुपाएंगे नहीं। They would openly tell everything to
their mother. और माता से, अपनी माता से सारी बातें खुलकर कहेंगे। Then through my wife, I would come to know all these things. और मेरी पत्नी के द्वारा मुझे सारी बातें तब पता चल जाती है। Just I want to our family fellowship that is dealing our children. और यहाँ पर पारिवारिक जो संगति है, बच्चों के साथ संबंध व्यवहार करने के संदर्भ में ये है। Just I want to share one incident. और एक घटना मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। One day, one of my son was returning home from the college. और एक दिन मेरा बेटा जो है कॉलेज से घर पर लौट रहा था। He was waiting for the bus बस के लिए इंतजार कर रहा था। in Trichy city, nearby Trichy city. तिरची जो शहर है पास में, वहाँ Some other college girl came near to him and asked him this question. और- Don't you shave? Don't you shave? और यहाँ पर एक कॉलेज की लड़की उसके पास, उसकी कॉलेज की आती कि तुम दाढ़ी नहीं करते हो भाई? Something like this. Don't you shave? ऐसे कुछ देख के कि भाई आप दाढ़ी नहीं करते हो क्या? Just with this question, she tested him whether this guy yielded or not. और यहाँ पर इस प्रश्न से जैसे वो लड़की जो है इसको जैसे वहां चेक कर रही थी कि ये वो वहां पर उसकी सुनेगा या नहीं सुनेगा। Without any reply, he gave her a angry look. और बहुत ही किसी भी इंतजार के बिना वो बहुत ही गुस्से से उस लड़की को देखता है। Then he got bus and came home. वो बस पकड़ के घर पर आ गया। So this happened around noon, at the time of afternoon. और दोपहर के समय में ऐसा हुआ। So evening when they were sitting in the dining table. और शाम को जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, So he shared this matter with his young brothers and mother. और अपने भाइयों के साथ और माँ के साथ उसने इस बात को बांटा। One of my boys told his brother, और मेरा एक जो बेटा है उसने भाई से कहा, Anna, don't shave. और उसने कहा कि भाई अन्ना तुम शेव मत करना। Even how many days it takes, don't shave. और कितने ही दिन बीत जाए तुम दाढ़ी मत करना। Because if you shave means what she would think. Because of me only she has shaved. और अगर तुम वहां पे शेव करोगे तो लड़की सोचेगी मैंने उसको कहा था इसलिए इसने ऐसा किया है। Anna, don't shave. आप ऐसा मत करना अन्ना। Then another boy, दूसरा लड़का, another one, दूसरा लड़का, he told him, उसने ऐसे कहा, see, whether you shaving or not shaving, that's not the matter. Hereafter, don't stand at that stop. और मेरे दूसरे लड़के ने कहा कि तुम दाढ़ी करो या ना करो, आज के बाद उस बस स्टॉप पे मत खड़े रहना अकेले। You change your bus stop. आपका बस स्टैंड आप चेंज कर दो, Even you go to the previous stop. उसके पहले वाला बस स्टॉप है उस पे चले जाओ, You should not stand here. वहां पे खड़े नहीं रहना है। So these were the conversations among them. और ये उनके बीच में ये बातचीत होती थी। Then I asked what was the conclusion? तो मैंने उनको पूछा कि इसका अंत क्या, परिणाम क्या है। Yes. My wife concluded with the second one's suggestion. और दूसरे बेटे का जो सजेशन है उसके साथ जो है वो कंक्लूड हुआ। Hereafter, don't you change your bus stop. Don't stand there. और वहां से अभी यहाँ से आगे तुम अपना बस स्टैंड बदल दो, अभी वहां पर खड़े मत रहो। So when boys or girls when they came forward to share those things, we should not take it in a wrong way. और जब हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां जो इन बातों को हमारे पास साझा करने के लिए, बांटने के लिए आते हैं, तो हमें गलत रीति से कोई ऐसा हाव भाव देकर उन्हें नहीं बताना है। Mummy, do you know what happened in my Trichy, my bus stop Trichy? और मेरे मम्मी, मुझे आपको पता है तिरची में बस स्टॉप में क्या हुआ? What? When she asked what happened, और जब वो मेरी पत्नी पूछती क्या हुआ, तब वो क्या कहते हैं? Mummy, one girl came to me and asked me, don't you shave? और जब आप एक लड़की मुझे आकर बोलती है कि क्या तुम शेव नहीं करते हो? Huh? What happened? और मेरी पत्नी ऐसा नहीं कि क्या ऐसा हुआ? When did she come? और कब वो आई? What did you say? तुमने क्या कहा उसको? So we should not பதற்றத்தோடு என்ன செய்யக்கூடாது? Not in a हड़बड़ा कर हमें उत्तर नहीं देना है। we should listen politely and calmly, quietly. और बहुत ही शांत रहकर हमें उन बातों को, बच्चों की सुनना है। Otherwise, they will hide it. नहीं तो दूसरी बार वो फिर छुपाना आरंभ कर देंगे। So we should allow our children to share all those things freely. और हमारे बच्चों को हमें अनुमति देना है कि बड़े खुली रीति से माता पिता से सारी बातों को साझा करें। Especially mothers, that your part is vital. और आप जो माताएं जो है, खासकर आपका जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात में। Be friendly with them. Be आपके friendly with बच्चों के साथ आप बहुत एक मित्रता के साथ घनिष्ठ संबंध को बनाए रखें। Regarding their
when they get married. जब बच्चे का विवाह हो जाता है तब Yes, उनके साथ संबंध कैसे all बनाएं? my sons' families are separate families. और अब मेरे बच्चे जो है लड़के जो है वो अभी उनके अलग अलग उनके परिवार है। God's grace, we have good relationship with all 4 families. प्रभु के अनुग्रह से चारों परिवार के साथ हमारे अच्छे संबंध है। See, God has laid us boundaries. We should not cross the boundaries. परमेश्वर ने हमारी एक सीमा को तय किया है, उस सीमा को हमें नहीं लांघना है। They have to run their own families. उनको अपना परिवार चलाना है They have to bring up their own children in godly fear. और उनको अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करना है। Already, we have brought up four boys. हमने पहले अपने चारों लड़कों को बड़ा किया है। Our job is over. हमारा काम तो अब खत्म हो चुका है। So there are in parents. I don't know much about Maharashtra, but in Tamil Nadu, और मैं महाराष्ट्र में तो नहीं जानता, लेकिन तमिलनाडु के अंदर even those old parents, even now, they want to bring up their children, the sons and grandchildren and granddaughters also, they want to bring up. और यहाँ पर जो माता पिता जो होते हैं, जो उनके नाती पोते होते, उनको भी वो बड़ा करना की इच्छा रखते हैं। No, we should not enter into the boundaries. उस सीमा के अंदर हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। We should give freedom. हमें आजादी देना है उनको। So God has given us such wisdom to not to enter into the boundaries. और प्रभु ने हमें वो बुद्धिमानी दी कि हम उन सीमाओं को लांघकर वहां न जाए। But in their major decisions, before they get their major decisions, they would come and ask for counseling. All my 4 sons. और चारों लड़के जब उनके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जब उन्हें लेने होते हैं, तो वो सलाह लेने के लिए मेरे पास आते हैं। Yes, we can help them. हम जरूर उनकी सहायता कर सकते हैं। Without they ask us, और उनके पूछे बिना we should not enter. हमें वहां पर हमें प्रवेश नहीं करना है। When they come for counseling, we can give counseling. सलाह लेने के जब वो आते हैं तभी हम उनको सलाह दे सकते हैं We can help them to find out God's will. और हम उनकी सहायता कर सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने के लिए। So God has been good to us. परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही भला रहा है। For example, in the case of Job and Abraham, और अय्यूब और अब्राहम के संबंध में, in Job's case and Abraham's case, in both cases, both Job and Abraham, they exercised authority, their spiritual influence was there upon them. और यहाँ पर अय्यूब अब्राहम दोनों के मामले के अंदर उनके बच्चों के संदर्भ में वे दोनों ही अपने बच्चों के जीवन में एक प्रभाव को रखते थे। Yes, all families are, all sons and daughters are all separate families only. और उनके जो लड़के बेटियां जो थे वो अलग अलग उनके परिवार थे। We should exercise our spiritual influence them. और हमारा उनके ऊपर एक आत्मिक प्रभाव होना चाहिए। Yes, now then I will also ask them, और यहाँ अक्सर मैं उनको पूछता हूँ, are you living without any debts? और क्या तुम बिना कर्ज के जीवन को जी रहे हो? Are you having any credit card usages? और आप कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड के यूसेजेस कर रहे हो? In a regular manner, do you visit one another's families? और क्या आप निरंतर एक दूसरे भाइयों के परिवार का आप विजिट करते हो? Yes, these are all the things we have to maintain. और ये सारी चीजें हमें बनाए रखना We है have to ask them now and then. और ये अक्सर हमें पूछना चाहिए। So this is a spiritual influence. और ये है आत्मिक प्रभाव बच्चों पर डालना। Okay, please. Okay. So there are 2 questions. We will combine them here. It's on children again. If our older children are far away from the Lord or they are not interested in coming to the church, how do we speak to them about the church and the Lord? Should we force them? Or should we just silently pray for them? And how can we inculcate a love of God and the church in our children? और प्रश्न ये है कि यदि हमारे बड़े बच्चे प्रभु से दूर चले गए हैं तो उनसे कलीसिया या प्रभु के विषय में कैसे हमको बात करना चाहिए? क्या हमें उन्हें जबरदस्ती कहना चाहिए या चुपचाप उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए? No, at any cost we should not force them. As they are older children, no, we should not. और किसी भी रीत पर हमें उन पर जबरदस्ती थोपना नहीं है क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं। Whenever we have the opportunity to speak to them, जब कभी हमें अवसर मिलता है बच्चों के साथ बात करने के लिए, and when our children listen to our words, और जब हमारे बच्चे हमारे शब्दों को सुनते हैं, we can speak about the Lord, not church. और हम कलीसिया के बारे में नहीं प्रभु के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। We should speak about the Lord.
और हमें प्रभु के बारे में बात करना है, not about the church. कलीसिया के बारे में नहीं। They should be attracted towards Lord first, not to the church. उन्हें सबसे पहले प्रभु की तरफ आकर्षित होना है, कलीसिया की तरफ नहीं। Okay, if they are not interested to listen, और यदि उनमें कोई रुचि ही नहीं है सुनने के लिए, yes, please pray for them even with fasting. और यहाँ यदि उनमें रुचि नहीं है सुनने के लिए, तो आप उपवास के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। In addition to that, we should put our mouth in the dust. We should put our mouth in the dust. और इससे आगे बढ़कर हमारा जो मुंह है वो हमें धूल में रखना है। So this is what we read in Lamentations chapter 3. और यही विलाप के 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। So then there will be hope. और तब हमारे लिए एक आशा होगी। In the past, with our mouth we have judged so many families. और अतीत के अंदर हमारे इसी मुंह के द्वारा हमने कई सारे परिवारों का न्याय किया है। Yes, such a big judging mouth. Now we should put our mouth in the dust. और इतना बड़ा न्याय करने वाला जो अभी मुंह जो है, हमें उसको पूरी तरह से धूल में रख देना है। Yes, there will be hope. तब हमारे लिए आशा होगी। Continuously pray for them even with fasting. और यहाँ तक निरंतर उन बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें, उपवास सहित आप प्रार्थना करें। So that's also question 14 or 12, 14. If our children are disinterested in coming to the church, should we force them? यदि बच्चे कलीसिया में आने के लिए रुचि नहीं दिखाते, तो क्या हमें उन्हें मजबूर करना चाहिए? So this is not older children, no? General. If they are below 12 or 13, और यदि 12-13 साल की कम उम्र के बच्चे हैं they are under the law. और वो कानून के अधीनता में है, We should exercise authority over them. और उनके ऊपर अधिकार हमें जताना चाहिए। Yes, we should ask them to come. और हमें उनको पूछना है कि तुम्हें कलीसिया में आना है। They should come. उनको आना ही है। So none of our words will fall to the ground. और हमारे कोई भी शब्द जमीन पर ऐसे ही नहीं गिरने चाहिए। So even at the age of 12 or 10 or 19, no, mommy, I don't want to come to this Sunday. I have some other work. No. Hey, come, man. और That's यदि all. 10 साल He उम्र में should come. That's all. We should exercise authority. They are under the law. और 12 साल 10 साल की उम्र में यदि कहते कि पापा मम्मी कलीसिया में नहीं आना, थोड़ा कुछ काम है, तो वहां पर हमारे अधिकार को हमें नहीं, तुम्हें आना ही है, वो उस अधिकार को हमें जताना है, क्योंकि तुम उस अधीनता में हो। If they are older children, the story is different. और यदि वो बड़े बच्चे हैं तो वो कहानी अलग है। So that's why we should exercise our authority even at the small little age itself. और जब वो छोटे होते उनके बचपन से ही उस अधिकार को हमें उनके ऊपर लाना है। We should win that self-will early. और उनकी जो स्वयं की खुद की जो इच्छा होती है उसको हमें बहुत ही जल्दी ही, कम उम्र के जब वो होते तो उसको जीतना है। Okay. How to deal with teenage children who are exposed to pornography? What should we do if they are already addicted, and how to warn them about these dangers? और प्रश्न ये है कि यदि हमारे किशोर बच्चे अश्लीलता या पोर्नोग्राफी के संपर्क में आ गए हैं, तो इसके वो आदी हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें इसके खतरे के बारे में कैसे हम चेतावनी दें या सावधान करें? My dear parents, please explain them the love of Calvary. और प्रिय माता पिता, अपने बच्चों को आप कलवरी क्रूस का प्रेम जो है उसे वर्णित करें। Set time with them and spend time with them and explain his first love on the cross. और यहाँ पर उनके साथ समय बिताए और सबसे पहले क्रूस का जो प्रेम है उसके बारे में अपने बच्चों को बताए। Pray that the Lord will open their eyes to see his first love on the cross. और यहाँ पर प्रार्थना करें कि बच्चों की आंखें प्रभु खोले, ताकि वो पहला प्रेम उस क्रूस के ऊपर बच्चे देख सके। Yes, those who are constrained with his first love, such people can be delivered from such gross sins. और जो लोग ऐसे प्रथम प्रेम जो उस क्रूस का उससे विवश या नियंत्रित हो जाते, तो ऐसे पापों से वो छूट जाते हैं। In addition to that, warn them with the consequences also. और इससे आगे बढ़कर हम उसके जो परिणाम जो होते उसके बारे में हम उनको चेतावनी दे सकते हैं। See, yesterday morning session we saw about in one unclean spirit possessed man. और कल हमने देखा, कल सुबह के सत्र के अंदर की हमने एक अशुद्ध आत्मा के संदर्भ में देखा। If they indulge in such evil pleasures, means they give a room or they open the door for the unclean spirits to come and dwell in them. और जब वो इन बुरी, उन लालसाओं भरी उन सारी बातों को जब वो स्थान देते अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन को तब खोल देते ताकि वो अशुद्ध आत्मा उनके जीवन के अंदर आकर निवास करे। You please pray for them. आप कृपया उनके लिए प्रार्थना करें।
that anointing will break the yokes of the enemy. और ताकि अभिषेक जो है वो शत्रु के जो सारे जुए हैं उनको पूरी तरह से तोड़ दे। You believe and trust, you ask for the anointing for the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को उनके ऊपर आप मांगे, उसके ऊपर आप विश्वास करें, You pray with them. आप उनके साथ प्रार्थना करें। Okay. There's one more question. As a father, how to teach our young girls about modesty? As a mother, how can I teach them? और एक प्रश्न ये है कि एक पिता के रूप में हम अपनी छोटी बेटियों को शालीनता या मॉडेस्टी के बारे में कैसे सिखाएं? एक माँ के रूप में मैं उन्हें ये कैसे सिखा सकती हूँ? First, I don't have daughters, और सबसे पहले मेरी बेटियां नहीं है, but we can share our opinions. लेकिन हम हमारे सुझाव को बांट सकते हैं। Even in this matter also, mothers should set an example before their daughters. और यहाँ पर सबसे पहले माता को अपने बेटियों के सामने एक उदाहरण बनना चाहिए। 1 Peter chapter 3:3 in message version we read like this. पहला पत्रस 3:3 में मैसेज अनुवाद में इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। Peter mentions about three things. पत्रस जो है 3 बातों के बारे में लिखता है। Number 1, पहली चीज, the jewelry you wear. और जो गहने जो आप पहनते हो। Number 2, the styling of your hair. और आपके बालों को गूंथना उसके बारे में। Number 3, the cut of your clothes. और आपके कपड़े पोशाक जो होते हैं उसका किस रीति से वो पोशाक है वो। Very nice translation. और बहुत ही अच्छा अनुवाद वो है। The styling of your hair. और आपके बालों को गूंथना या उसको संवारना। Nowadays beauty parlor, that is old word, beauty parlor. Beauty hub has come. अच्छा, ब्यूटी पार्लर तो पुराना शब्द हो गया, अभी तो ब्यूटी हब एक नया शब्द आया है। In Tamil Nadu, I used set செய்யறது பைத்திய சேட்டைகள்லாம் செய்யறது. अन्य विभिन्न प्रकार के बालों को सजाना, Coloring, dyeing, cutting, wetting, all these things और बहुत अलग अलग प्रकार के वहां पर आपको हेयर कट मिलेंगे, आपको कलर करना है, ये कट वो कट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार मिलेंगे। So in these things, especially mothers should set an example before our young girls. और सबसे पहले अपनी जवान बेटियों के सामने माताओं को सबसे पहले उदाहरण बनना है। Yes, we have to keep the standard of the church. और हमें कलीसिया के अंदर उस स्तर को बनाए रखना है। Even the cut off the sisters' clothes. और जो बहनों का जो वो पोशाक जो होता है उसका कट जो होता है या कैसे वो सिलाए गए हैं, किस प्रकार का वो ढंग है। Cutting like this, no? और जैसे कटिंग होता है पूरा, So fully open. और पूरी तरह से खुला हुआ है। In the Garden of Eden, Adam and Eve, they found out the fig leaves fittings. और आदम और हवा जब उस अदन की वाटिका में थे तो अंजीर के वृक्ष का फिग लीफ, अंजीर के वृक्ष का फिटिंग उनको दिया गया। Full of exposure, body of exposing. और वहां पर जो था वो पूरी तरह से शरीर जो दिखता था। But what did God give them? लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या दिया? Skin garment. और वहां पर उन्हें चमड़े का वस्त्र उनको पहनाया, In order to cover the body. उनके शरीर को पूरा ढांपने के लिए। That's the principle in the beginning. और ये जो सिद्धांत है वो जो आरंभ में था, But we should not change that principle. और उस सिद्धांत को हमें नहीं बदलना है। Yes. Our clothes and our everything, it should be simple and modest. और हमारे कपड़े जो है, हमारा पोशाक जो है बहुत ही सरल होना चाहिए। Yes, we should speak about these things to our dear daughters. और हमें जरूर हमारे बेटियों के साथ इससे बात करना है। We read about in Isaiah chapter 6 about those angels. और यशायाह 6 अध्याय के अंदर वहां स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं। So 2 wings to close their face, और 2 उनके पंख जो होते थे अपने चेहरे को ढांपते थे, 2 wings to close for their body, everything, और their 2 legs, everything. और यहाँ पे 2 उसके पंखों के द्वारा अपने पैर या अपने शरीर को ढांपते थे। Then for the 2 wings for serving. और 2 जो पंख है वो उनकी सेवा करने के लिए है। See what happened. So when they closed by those wings, और जब वो जो पंख जो है वो उनको ढांप देते तब क्या होता है? here on the earth, Isaiah got convicted. और जब वो ऐसा करते हैं तो यशायाह जो है उसको वो बोध मिलता है। Yes, that's the glory of. We should always give glory to God. और यही महिमा हमें हमेशा परमेश्वर को देना है। We should not glorify ourselves by our clothing or styling our hair. और हमारे पोशाक के द्वारा, हमारे बाल गूंथने के द्वारा हमें अपने आप के लिए महिमा नहीं लेनी है। Mothers should teach them. Before that, we should set an example before our children. और माताओं को अपनी बेटियों को सिखाना है, उसके पहले हमें उनके सामने एक उदाहरण बनना चाहिए।
Okay, question 9. There are a couple of questions on finances. और यहाँ पे आर्थिक बातों को लेकर कुछ प्रश्न हैं। How do you deal with financial boundaries? What kind of financial boundaries should be set? How did you stay out of debt? When we are in debt, are there any practical steps to finish it quickly? और प्रश्न यह है कि आर्थिक सीमाओं को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? आपने जो कर्ज जो है उसे कैसे, अपने डेब्ट से कैसे बचाव किया, ऋण से? यदि हम किसी कर्ज में हैं तो उसे जल्दी समाप्त करने के लिए कौन से व्यवहारिक कदम को उठाए जा सकते हैं? I praise and thank God for our dear brother Zach and Annie. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं भाई हमारे जैक और सिस्टर एनी के लिए, They are our forerunners. और वो हमारे अग्रदूत जैसे हैं। One of the lessons in 1980s I learned from him. और 1980 के उस शतक के अंदर मैंने एक पाठ जो उनके जीवन से सीखा वो ये है, Those conferences we heard. और उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमने ये सुना था, God taught us not to get into debt. परमेश्वर चाहता है कि हम कभी भी उस कर्ज के अंदर न आए। So, whoever breaks the fence or heads, serpent will bite him. और कोई भी वो बाड़े को यदि वो तोड़कर आगे बढ़ जाता है तो सर्प उसे डसेगा। God saved us from the serpent bites. और परमेश्वर ने उस सांप के डसने से हमको बचाया है। Yes, we have to be faithful in our financial circles. और हमारा जो आत्मिक जो सीमाएं जो है उसके अंदर हमें विश्वास योग्य रहना है। If our financial orbit, if our financial circle is 20,000 means we should live within the 20,000. और यदि परमेश्वर ने हमारी उस आत्मिक सीमा को, उस गोले को 20,000 तक की आय में रखा है तो हमें उसी सीमा के अंदर रहना है। For another person it may be 40,000. और दूसरे व्यक्ति के लिए 40,000 होगा, For some other person it may be 1 lakh. और दूसरे व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए का होगा। We should not compare other life circles or life styles. और हमें दूसरे जो व्यक्ति का जीवन कौन, जो जीवन शैली है उसके साथ हमें तुलना नहीं करना है। If we are faithful in that little, then God will entrust us. और यदि हम छोटी बातों में विश्वास योग्य तो परमेश्वर हमें सौंपेगा। God has to enlarge our financial circles. We should not. और परमेश्वर ही है जो हमारी उस आर्थिक जो सीमाओं को बढ़ाना है, हमें स्वयं से नहीं करना है। That is financial faithfulness. और ये है आर्थिक बातों के अंदर की विश्वास योग्यता। We in our home life we purchased the washing machine at our 28th year marriage. और हमारे विवाह के 28 साल बीत जाने के बाद हमने पहला वॉशिंग मशीन हमारे परिवार के अंदर हमने खरीदा। So that first 20 days we both wash our clothes, our children's clothes. और जो पहले जो साल जो होते थे उसके अंदर हम हमारे स्वयं के कपड़े खुद से धोते थे। So what we see earlier, no, that is a fellowship washing. और यहाँ पर हम देखते कि संगति का कपड़ा धोना, That is fellowship washing. और वहां पे भी एक संगति का कपड़ा धोना है। We should make everything in a spiritual way. और हमें सारी बातों को आत्मिक रूप से करना है। At our 28th only we bought that washing machine. और जो 28 साल होने के बाद ही हमने उस वॉशिंग मशीन को खरीदा। In our 25th year we purchased a refrigerator. और 25 साल हमारे विवाह के होने के बाद हमने हमारा पहला रेफ्रिजरेटर फ्रिज खरीदा। At my 10th year only we bought a gas stove. और 10 साल हमारे विवाह के होने के बाद हमने पहला गैस स्टोव खरीदा। Because in those days I have been taught in the church by our beloved brother Zach that save now, buy later. That's the thing I learned और from ये him. कलीसिया के अंदर भाई जैक के द्वारा शुरुआती दिनों में यही हमको सिखाया गया था कि अब हमको बचत करना है और बाद में उसका फिर हमको खर्च करना है। Nowadays it has been ulta. और अभी इन दिनों के अंदर पूरा उल्टा हो चुका है। Buy now, अभी खरीद लो, pay later. बाद में पैसा चुकाना। So this is the principle now. अभी ये सिद्धांत पर काम चलता है। But in those days, लेकिन उन दिनों में save now and buy later. अभी तुम बचत करो और बाद में खरीदना। So for each and everything we wait for some time. और हर चीज खरीदने के लिए हमें कुछ समय तक हमें इंतजार करना पड़ा। Jesus, one of the code words of Jesus, my hour has not yet come. और यीशु मसीह का सबसे उत्तम शब्द ये था कि मेरा समय अभी नहीं आया है। So just like that word, और उसी शब्द के अनुसार my hour has not yet come to buy fridge. और मेरा समय अभी नहीं आया फ्रिज खरीदने का। My hour has not yet come to
buy a washing machine. और वॉशिंग मशीन खरीदने का समय मेरा नहीं आया है। My hour has not yet come. No, my hour has not yet come. My मेरा hour has not yet come. मेरा समय ये खरीदने का, मेरा समय ये खरीदने का, ये लेने का नहीं आया है। But for the worldly people, the hour is at hand. लेकिन संसार के लोगों के लिए तो अभी समय है, अभी उनका समय है। What do they want? They can get immediately. और संसार के लोगों को तो अभी समय, अभी सब कुछ ले सकते हैं। So nowadays, many banks are all, they are standing in the queue to give loan. और बहुत सारे बैंक आजकल पूरी लाइन में खड़े आपको लोन देने के लिए तुरंत। So how many EMIs a person may have? और एक व्यक्ति को कितने ईएमआई हो सकते, कितने वो किस्त भर सकता है? EMI. और वो ईएमआई किस्त भरते ही जाएगा। Education, पढ़ाई के education लिए- loan, housing loan, vehicle loan. पढ़ाई का लोन हो सकता है, गाड़ी का लोन हो सकता है, घर का लोन हो सकता है। No. This is not the principle. This is not way of living. और ये जो है वो ये सिद्धांत नहीं है जीवन जीने का। We should have a financial discipline in these areas. हमारे जीवन के क्षेत्र के अंदर आर्थिक एक डिसिप्लिन होना चाहिए। Okay. Thank you, brother. I already feel we'll hear a lot of the brothers using my time has not yet come more often. I hope we start doing and we get out of our debts very soon कर्ज if से we are in. तुरंत बाहर निकल पाए इन सिद्धांतों को जो हमने सीखा उसके द्वारा। Yeah. So next question is, what is your attitude to entertainment, spending time on YouTube or watching sports, etc.? मनोरंजन को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? जैसे YouTube देखना, खेल कूद देखना, इन चीजों को आप कैसे संभालते हो? In Mark 6, we read, Jesus wanted rest for a while. और मरकुस 6 के अंदर हम पढ़ते कि यीशु मसीह को थोड़ा विश्राम की उसको जरूरत थी। Yes, he wanted to take a rest for a while, और थोड़े समय के लिए उसको एक विश्राम की जरूरत थी, but he couldn't. लेकिन वो नहीं ले पाया। So, right entertainment and right relaxations are okay. और जो एक सही जो मनोरंजन होता है, यह सही रीति से आराम या विश्राम करना, ये ठीक बात है। For some people, it may be watching news. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक अखबार देखना, For some, it may be cricket. और कुछ लोगों के लिए क्रिकेट देखना हो Or for सकता है, some, it may be sports. और कोई खेलकूद देखना हो सकता है, Or it may be some missionaries, documentary films. और हो सकता है मिशनरी डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे यूट्यूब पर। See, we cannot give you a rule or rules, make rules. These are all the things we should not. और ऐसा कोई नियम हम आपको कानून नहीं दे सकते कि ये देखना ये नहीं देखना है। Our principle, it should be clean. That's all. और हमारा सिद्धांत ये है कि एकदम साफ सुथरा वो होना चाहिए। Yes, we should spend our time means it should be clean. और हम यदि हमारा समय बिताते तो साफ सुथरा वो होना चाहिए। Nowadays, most of them are spending time in YouTube or watching shorts. और आजकल बहुत सारे लोग वीडियो यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखने के अंदर अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। If anyone doesn't find time to read the word of God, but they are spending time in shorts in YouTube, means he is a pakka thorough backslider. और यदि आपको बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उस समय के अभाव के कारण आपके पास समय नहीं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से उस यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते रहते, तो आप पूरी तरह से एक पीछे हटे हुए व्यक्ति है। Yes, let us judge ourselves in this area. और आइए अपने स्वयं का इस क्षेत्र के अंदर हम न्याय You करें। compare your time, अपने समय का आप तुलना करें, your time with the word of God, your time with the shorts. और आप अपना समय वचन के साथ कितना बिताते हैं, और आपका यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखने में आप कितना समय अपना व्यतीत करते हैं। If you don't have time to meditate the word of God, यदि आपके पास समय नहीं है प्रभु के वचन पर समय बिताने के लिए, spending time with in your closet, और आपके कमरे में जाकर समय बिताने के लिए, but you have enough time for spending time in YouTubes and shorts means. और लेकिन आपके पास बहुत पर्याप्त समय होता है यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, इन सारी बातों को देखने में। Yes, again, in the name of Jesus, I tell you, such persons are pakka thorough backsliders. और यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से यदि ऐसा व्यक्ति जो है पूरी तरह से बैकस्लाइडर या पूरी तरह से पीछे हटा हुआ व्यक्ति वो है, Already they have backslided. और पहले ही वो पीछे हट चुके हैं, Already. और हो चुका है ये तो। So let us beware of such things. और ऐसी चीजों से आप सावधान रहे। So nowadays, many distractions and time killers are all in the social medias. और सोशल मीडिया के अंदर हमारा समय बर्बाद करने के लिए, हमारे चीजों को, हमारा ध्यान भंग करने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। So we need the power of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की सहायता की सामर्थ की जरूरत है। One fruit of the
anointing, baptism of the Holy Spirit is self-discipline. और यहाँ पर पवित्र आत्मा के उस भरपूरी का जो एक चिन्ह जो है या फल जो है वो है स्वयं को अनुशासित करना है। When we are filled with the Holy Spirit means it will control our body, our time and money. All these three areas, और- we will have that self-discipline. और जब पवित्र आत्मा हमें नियंत्रित करता है तो हमारा जो शरीर जो है हमारा पैसा जो है उन सारी बातों के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। Okay. That's what. 16? Okay. 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 Please. How can we ensure that the truth we hear in CFC is not only head knowledge but really becomes flesh in us? और हम कैसे सुनिश्चित करें कि सीएफसी कलीसिया में जो हम सत्य सुनते हैं वह केवल हमारा दिमागी ज्ञान न रहकर वास्तव में हमारे जीवन में जीने वाला सत्य बन जाए। Just one example, just I want to. और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। For example, if you are not humbling yourself first, यदि आप अपने आप को पहले नम्र नहीं करते हैं if you are not apologizing first, और यदि आप पहले माफी नहीं मांगते हैं तो, if you are not forgiving another person's fault first, और यदि दूसरे व्यक्ति ने जो भी आपके साथ गलत किया अगर आप पहले माफ नहीं करते हैं तो, what your reasoning says. और आपका जो विवाद आपका जो तर्क क्या कहता है, Oh, let me wait. First, let him come and ask for apology. और आपका मन आपका तर्क ये कहता है कि उस व्यक्ति को पहले आकर मुझे क्षमा मांगने दे, First, let her come, और पहले उसको आने दे और माफी मांगे मुझसे, ask for apology. और पहले वो माफी मांगेगा, Then only I will forgive her or forgive him. और उसी के बाद मैं उसको माफ करूंगा या करूंगी। That means all these years what you heard in the church, that's a head knowledge. और इसका मतलब इन सालों में इतने सालों में आपने कलीसिया में जो भी ज्ञान सत्य सीखा है वो केवल आपका दिमागी ज्ञान ही था। If it has become your flesh means what you do, immediately you would go and apologize yourself. और यदि वो सत्य आपके जीवन में एक मांस बनकर आपका जीवन है तो आप तुरंत जाकर उस व्यक्ति को आप क्षमा मांगेंगे। You will the first person to honor, to ask for forgiveness or make apology or set it this, you will be the first person. और आप सबसे प्रथम व्यक्ति होंगे उस व्यक्ति से माफी मांगने के, उसका आदर करने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए आप पहले व्यक्ति होंगे। Such people are all spiritual people. और ऐसे लोग ही आत्मिक व्यक्ति होते हैं। That's one example. और ये एक उदाहरण है। Okay. Thank you, brother. We will extend for 10 more minutes. We have just 2-3 more questions. How do you meditate on the Bible? Do you listen to many messages or just read your Bible on your own? और प्रश्न ये है कि आप बाइबल पर मनन मेडिटेशन कैसे करते हैं? क्या आप अधिक संदेश सुनते हैं या स्वयं बाइबल पढ़ने में ज्यादा समय देते हैं? Yes, I listen Brother Zach's messages very regularly. और मैं भाई जैक के संदेशों को बड़े नियमित रूप से सुनता हूँ। For nearly 40 years I have been listening Zach's message. और 40 साल लगभग हो चुके मैं भाई जैक के संदेशों को सुनता हूँ। Yes, I am listening. और मैं सुनता हूँ। Regarding reading and meditating the Bible, और बाइबल को पढ़ना और मनन करने के संदर्भ में generally और आमतौर पर I will fix and apply the scriptures with practical life. और इन वचनों को मेरे जीवन के व्यवहारिक रूप के हालातों के अंदर मैं उसको अप्लाई करना चाहूंगा। In every situation, हर एक परिस्थिति के अंदर I will fix and apply और उसको मैं पूरी तरह से मैं उसको अप्लाई करूंगा। with God's grace. ये प्रभु का अनुग्रह है। I will, one more thing regarding the meditation. और एक मनन करने के बारे में I will generally compare the scriptures with the scriptures. और मैं आम तौर पर जो वचन जो है वो दूसरे वचन के साथ उसकी तुलना करता हूँ। One more thing, I would like always the topical studies. और टॉपिक Topical हाँ, studies. और मैं जो विषय संदर्भ में होता है कि हर एक स्टडी का जो विषय जो होता है उस विषय के ऊपर ही मैं मनन करना चाहूंगा। For example, our theme, our topic, overcoming the world means. और मैं जो हमारा जो शीर्षक जो है कि संसार के ऊपर जय पाना, I will meditate and search the scriptures on the basis of being delivered from this evil world. और इस संसार के ऊपर विजय पाने के संदर्भ में ही उन वचनों को मैं ढूंढूंगा। From my young age itself, God has given us such thing. और मेरे कम उम्र से ही परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में डाला। I would like that topical studies. और जो एक विषय जो होता है उसी विषय को लेकर मैं मनन करूंगा। Or
even character studies. और यहाँ पर जो एक कैरेक्टर जो होते हैं, जो चरित्र होते हैं बाइबल के अलग अलग, उसके ऊपर मैं मनन करूं Comparing the scriptures with the scriptures. और एक वचन को दूसरे वचन के साथ मैं तुलना करूं Relating the old covenant truths with the new covenant in light. और पुराने नियम के जो सत्य है वो नए नियम की जो ज्योति है उसके साथ मैं उसकी तुलना करूं। So God's grace. ये प्रभु का अनुग्रह है। Thank you, brother. This another question. How did you help your wife in practical household chores and also with children? आपने अपनी पत्नी की घरेलू कामों के अंदर और बच्चों की देखभाल करने में कैसे मदद की? So, as I already told, with my 4 sons, all my 4 sons, I have taken mathematics and physics. और मेरे चारों बच्चों के साथ जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंने उनको पढ़ाया I है would spend time with them, I would play with them. और मैं उनके साथ समय बिताता, उनके साथ खेलता हूँ। So, whenever we find time, we will engage with them. और जब कभी हमको समय मिलता उनके साथ में समय बिताकर उनके साथ में रहता हूँ। So, young 4 bulls, no? और जो चार जो बैल जो होते हैं उसके जैसे 4 लड़के, that was a tough period only. और ऐसा एक कठिन समय भी था। In the beginning, as they are growing, just I would bring some carom board. और जब वो बड़े हो रहे थे तो मैं कैरम बोर्ड लेकर आया। So out of some, out of the hey, today daddy will bring carom board for us. They will be very exciting. और जब मैं कैरम बोर्ड लाया तो बड़ा एक्साइटमेंट में आकर बोलेंगे पापा आज हमारे लिए कैरम बोर्ड लेकर आ रहे हैं। So after 1 week or 1 month, all the coins and board will somewhere and it will be scattered somewhere. एक हफ्ते एक महीने के बाद उसका कैरम बोर्ड कहीं पे होगा, उसके वो जो खेलने के कहीं और वो चले जाएगा। What I would think, मैं क्या सोचूंगा, this carom board will satisfy them. और मैंने सोचा कि कैरम बोर्ड उनको संतुष्ट करेगा। Within a month or within a week, everything will be finished. एक हफ्ते में एक महीने के अंदर सब पूरा तोड़ देंगे। Okay, again we'll plan. और फिर हम प्लान करेंगे Oh, let us introduce chess board. और चेस बोर्ड लेकर आते हैं उनके लिए। One fellow will always one will always win the chess. एक जो लड़का जो रहेगा वो हमेशा उसके अंदर जीतेगा The other fellow, oh, leave it. और दूसरा जो उसको पूरी तरह से नहीं खेलना है वो पूरा निकाल देगा उसको, So that won't satisfy. और उसमें भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। Then we brought one more thing. और उसके बाद दूसरा कुछ लेकर आए Actually, we found where they are showing interest. और हम देखते थे कि उनका रुचि कहाँ पर है बच्चों की। In the pets, they have shown interest. और जो छोटे जो पेट्स जो होते हैं उसके अंदर उनका इंटरेस्ट है। So they have brought up many rabbits, that's lovebirds and doves, pigeons, varieties. और ऐसे बहुत सारे वैरायटी घर में लेकर आते थे, वहाँ पे रैबिट हो या फिर पिजन्स है, ऐसे बर्ड्स वो लेकर आते। So because of those pigeons, some snakes entered into home. और वो पिजन घर में लेकर आते थे, इसलिए हमारे घर में सांप कहीं से आ गए उसको ले। Actually, we cannot bear that smell, no? That's इतना उसकी बदबू आती थी, हमको वो सहन नहीं होती थी। but we tolerated. और But we हमने उसको tolerated सहन किया। हाँ, because we don't want our children to go outside. और क्योंकि हम That's the चाहते, principle. और ये सिद्धांत हमारा था कि हमारे बच्चे कहीं बाहर न चले जाए, They should be engaged. और हमारे बच्चे घर के अंदर हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहने चाहिए। And then they changed for a Labrador dog. और फिर एक बड़ा कुत्ता वो लेकर आए, Such a big story. और बहुत ऐसी कहानियां हैं। So bring up with them means we have to go along with them. उनको बड़ा करना, उनके साथ साथ बच्चों के साथ साथ हमें चलना होता है। Sin is serious. और Okay. सबसे पहला जो पाप जो है वही गंभीर है, We cannot make any rules and regulations here. और हम उस वहां पर कोई कानून नियम जो है वो नहीं बना सकते। We need wisdom. According to the situations and circumstances, we have to depend upon the Lord. और हमें परिस्थितियों के आधार पर, हालात के आधार पर हमें बुद्धिमानी की जरूरत है और परमेश्वर पर आधारित रहना है। We have to win them. हमें हमारे बच्चों को जीतना है। Okay. Thank you, brother. There's one more question on children. How was your attitude to punishing your children? How did you do it? When did you do it? और बच्चों को अनुशासित करने में आपका दृष्टिकोण कैसा था? आपने ऐसा कब किया और कैसे किया? So it's a very important question. और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। Please
I want to show one verse. That's मैं- very, very important verse. और ये एक वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन है। So, one young boy, one young child, please come to the stage. Just I want to do it in the with demo. एक डेमो में करना चाहूंगा। So, you please, someone in the church, you please read verse 13, Proverbs 13:24. नीति वचन 13:24। Proverbs chapter 13, verse 24. 13, 1-3. 1-3, 24. 13:24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। Whoever spares the rod hates his son, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, but one who loves disciplines his child. परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो उसको अनुशासित करता है। So there are two extremes. दो छोर यहाँ पर है। For one is for even for little things punishing them. No. एक छोर यह था कि छोटी छोटी बातों के लिए बस उसको लकड़ी से मारते रहते, छड़ी से। For such situations, what the children will feel. और ऐसी परिस्थिति में बच्चा क्या महसूस करेगा? My home is like a prison. और मेरा घर तो एक कैद खाने जैसा है। When I can be freed from this jail? और इस जेल से कब आजाद होऊंगा मैं? No, even for little things we should not punish. और छोटी छोटी चीजों के लिए हमें उनको पनिश नहीं करना है। The other side, other extreme is there. दूसरी छोर ये होता है Not at all punishing them. और बिल्कुल भी उस पर छड़ी नहीं चलाते, उसको पनिश ही नहीं करते हैं They loosen them or give them give total freedom. और उनके ऊपर पूरा छोड़ देते हैं, पूरा आजादी उनको जैसे स्वतंत्रता दे देते हैं। So not even rebukes or reproofs. और वहां पे उनको डांटते भी नहीं है। No, we should not go to any extremes. ये दोनों छोर पर हमें नहीं जाना है We should punish them. और हमें वहां पर उनको वो पनिश करना है We have to use rods और हमें छड़ी का इस्तेमाल करना है up to the age of 12. और 12 साल की उम्र तक। So before they get into teens, we should use our rods. और यहाँ पर वो किशोरावस्था में जाए वहां तक हमें उस उम्र तक हमें उस छड़ी का इस्तेमाल Not करना for all, not for all. है और हमेशा सबके लिए नहीं। Mainly when they rebel or when they hide. और जब वे कुछ बातों को छिपाते हैं या बलवा करते हैं। So these are the two serious sins. और ये दो जो गंभीर पाप है। Yesterday night also Zach shared this और thing. ये कल रात को भी भाई जैक ने इस बात को बताया। So if you tell the truth, I won't punish you. और यदि आप सच बोलोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। So in this home, honesty, integrity is main thing. और इस घर के अंदर जो सच्चाई जो है, ईमानदारी जो सबसे मुख्य बात है। So tell me the truth. मुझे आप सत्य बताओ, Did you do like this? ये कि आपने ऐसा किया? Okay. Tell the plain truth. और आप पूरी तरह से सच बोलिए। So if they hide, और यदि वो छुपाते हैं then we have to take the rod. तो तभी हमें छड़ी लेना है, We have to punish them. तो हमें उनको पनिश करना है। The other thing is rebellious spirit. और दूसरा जो है वो एक बलवा करने वाली आत्मा। These are all the two things, main things. We should use rod. और यहाँ पर जो है इन बातों के लिए हमें उस छड़ी का। Boys, please stand. No, please come. You come here. डोंट बी अफ्रेड। Why? Yeah. Next verse. I want to show one more verse. और एक मैं वचन बताना चाहता हूँ। Proverbs 22:15. नीति वचन 22:15। Proverbs, you please read that verse. नीति वचन उसका 22 अध्याय वचन 15। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। See, so look at here. Foolishness is bound up in the heart of the child. So और मूर्खता जो है just वो one उसके demo only, no? ये डेमो ही है। Don't think that. ये एक जैसे कि मूर्खता All, की in गांठ all, उसके in मन all. में है। हाँ। Foolishness is bound up in the heart of the child. और ये जो है उसका जो हृदय है उसके अंदर मूर्खता जो एक गांठ बांधकर जैसे उसके अंदर लगी हुई है। See, God has given us the rod प्रभु ने हमें एक छड़ी दिया है to drives it far from him. और यहाँ से वो मूर्खता को दूर करने के लिए एक छड़ी दी है। So what we should do, और इसका हमें क्या करना है? by striking him at the back, और पीछे ऐसे मारने के द्वारा here the foolishness can be driven. और यहाँ आगे से वो मूर्खता बाहर निकल जाएगी। இங்க கொடுத்தா இங்க வெளியில வந்துரும். और यहाँ से मारने के बाद आगे से वो बाहर निकल जाएगा। So see, this is what God's word. और We ये read प्रभु like का that, no? ये प्रभु का वचन है। Foolishness is bound up in the heart of the child, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, as God has given us rod to drives it far from him. परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोलकर उससे दूर की जाती है। But most of the people, they fail to do it. बहुत सारे लोग ऐसे करने में असफल रहे हैं। So
what God will do. और तब परमेश्वर क्या करेगा? So with these words we'll close. Proverbs chapter 22, verse 27, 22. 27. So let us give a good hands to him. थैंक यू. What's your name? Huh? David. Oh, good. Thank you. Okay. Proverbs 27, 22. 27, 22 नीति वचन 27 उसका 22 वचन. If we miss to do it, then God has to use the mortar and pestle to grind the foolishness. चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी. So I request all the parents to those who have little children. I want to, I plead you to see these words by your own eyes. और Proverbs 27, 22. और नीति वचन 27 अध्याय 22 वचन जितने यहाँ पर माता पिता हैं जिनके छोटे बच्चे, मैं आपको कहूंगा, मैं आपको विनती करूंगा कि इस वचन को अपनी आंखों से आप देखें. If we miss to do it in the early stage, यदि शुरुआती दिनों में हम ऐसा करना हम नहीं करेंगे, then चूक जाएंगे, God तो has to use the mortar and pestle to grind the foolishness. तब परमेश्वर, यदि हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर को वो ओखली जो है जिसमें डालकर मुसल कर कूटते हैं उसका इस्तेमाल परमेश्वर को करना पड़ेगा. So it should not be happening in any of our homes. और हमारे घरों में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. We have to use the rod with wisdom. और हमें उस छड़ी का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना है. Okay, please. Please pray. आइए हम प्रार्थना के साथ अंत करेंगे. पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो हमने आज सुना है, जिन प्रश्नों के उत्तर के बारे में. प्रभु धन्यवाद इन प्रकाशनों को, इन सत्यों को हमारे जीवन पर प्रकट करने के लिए. इन सत्यों के द्वारा प्रभु तो हमारे परिवारों में, हमारे जीवन कलीसिया में एक आशा को लेकर आप प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर प्रभु, ताकि हम प्रभु उन सारी बातों के अंदर मसीह की समानता में बढ़ सके. धन्यवाद हम सभी माता पिता परिवारों की सहायता करके जो आज हम सुना है उससे हम कंडेम ना हो प्रभु, अपने आप का प्रभु दंड महसूस न करे, पर एक आशा के साथ प्रभु तेरी सहायता को यहाँ से आगे हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए हम मांगते हैं. तुझे सारा महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. Thank you, Brother Victor, and thank you, everybody.